Hi, my dear students. In the last class, we discussed about the physical quantity, and today we discuss about the scalar and the vector quantity. But first of all, I will be give you some snap about the last class, and then I will be continue for the next class. So first of all, we discuss about physical quantity. In the last class, we discussed there are the three type of the physical quantity, and first is the fundamental quantity, second one is the derived quantities, and the third one is the supplementary quantity. And after that we discuss about there are the seven fundamental quantities, and that is the very important. For the first, mass, and we can take the unit of the mass is called the kg. Okay, after that we will discuss about the length have the unit of the unit is the meters, and after that discuss about the second, time is the unit of the second, टेम्परेचर केल्विन में मेजर करते हैं बच्चा, उसके बाद में करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं. After that we discuss luminous intensity, candela, and last one we discuss about the amount of substance, and it is measured by the mole. These are the seven fundamental and the fundamental quantities, and this is the very important for us, because without this fundamental quantity we can't be explain the physics. So you have need to remember all things about the line by line. After that we discuss about the derived physical quantity. Derived physical quantity is the quantity which is formed by the help of the fundamental quantity. If more than one fundamental quantity is used, then that is called the derived physical quantity. And after that, last one we discuss about, we have already discussed about supplementary quantity. Supplementary quantity means the some supplementary quantity which is not explained in the fundamental quantity and the derived quantity, that is called the supplementary quantity. And there are the two supplementary quantity. First is the solid angle, and second one is the plane angle. But today we are discussing about a scalar quantity and the vector quantity. So our topic is the what is the scalar quantity, what is the scalar quantity, and what is the vector quantity. The first we discuss about the scalar quantity. A scalar quantity is the quantity which have only magnitude, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड. ऐसा क्वांटिटी बच्चा जिसके पास में केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो और इसके पास में डायरेक्शन नहीं हो, तो ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. आप कहोगे सर कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है या डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? तो आगे चल करके हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे डायरेक्शन पता करते हैं, कैसे मैग्नीट्यूड पता करते हैं. पहले आप समझिए, स्केलर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास में मैग्नीट्यूड होगा. जैसे मैंने बोला 10 kg पोटैटो, 10 kg पोटैटो, तो ये 10 जो है ना बच्चा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड बोलेंगे. क्या बोलेंगे बच्चा? इस 10 को मैग्नीट्यूड. अब इसका डायरेक्शन तो है नहीं. केजी पोटैटो, केजी क्या है? यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है. हमने लास्ट क्लास में देखो फिजिकल क्वांटिटी, मास को किस में मेजर करते हैं बच्चा? केजी में. तो फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन डायरेक्शन की तो बात नहीं हो रही है. यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है. ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, या नॉर्थ डायरेक्शन या वेस्ट डायरेक्शन, ऐसा कोई भी डायरेक्शन नहीं है. साउथ डायरेक्शन, ऐसा कोई भी डायरेक्शन इसको स्पेसिफाइड नहीं किया गया. दैट मीन्स ये केवल और केवल क्या दे रहा है बच्चा? स्केलर दे रहा है यहाँ पे. दैट मीन्स क्या है? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसके पास में केवल क्या हो? मैग्नीट्यूड हो. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ? एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो मैग्नीट्यूड का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. तो चलो आ जाओ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि तुमको समझ में आए कि हम लोग कैसे इसको समझते हैं. तो हमारे पास में जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, एक कार है. तो कार का, अब आपको अंदर में कार के बारे में क्या आ सकता है स्केलर के लिए? तो मैं बोलूँगा लेंथ ऑफ द कार. तो लेंथ ऑफ द कार, जैसे हमने बोला यहाँ पे क्या बोला बच्चा मैंने? लेंथ ऑफ द कार. जैसे ही मैंने बोला लेंथ ऑफ द कार, तो लेंथ क्या आ गया? अभी हमने आपको बताया था 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर में लेंथ होता है. इसका मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी हमारा एग्जांपल हो गया लेंथ. अच्छा, लेंथ ऑफ द कार, कार एक कोई थिंग्स है हमारे पास में, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 4.5 मीटर. दैट मीन्स ये जो 4.5 है ना बच्चा, दैट इज कॉल्ड द, बोलो क्या बोलेंगे उसको? मैग्नीट्यूड. तो क्या लेंथ ऑफ कार को बताने के लिए क्या आपको डायरेक्शन की जरूरत होगी? क्या नहीं होगी? क्या मैं ऐसे बोलूंगा कार का लेंथ 4.5 मीटर है ईस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में? ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगा, सीधा बोलूंगा कार का लेंथ जो है 4.5 मीटर है. तो इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं हुआ. दैट मीन्स ये कैसा हो गया? लेंथ
जो होगा कार का लेंथ मेजर करेंगे। तो ऐसे क्वांटिटी जहाँ पे डायरेक्शन की रिक्वायर्ड नहीं हो लेकिन एक फिक्स लेंथ हो, यानी कि फिक्स एक साइज हो, और उसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलेंगे, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, स्केलर क्वांटिटी। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला मास ऑफ अ गोल्ड बार इज 1 kg, यानी 1 क्या है यहाँ पे, 1 kg के अंदर में जो 1 है ना बच्चा, दैट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। और ये मास क्या है हमारे पास में, मास इज द फिजिकल क्वांटिटी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, तब आपको टाइम, आपसे पूछे टाइम कितना हो रहा है, आपसे पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता है। इसका मतलब टाइम, तो आप कुछ टाइम बताएंगे, जैसे 12:76 सेकेंड ऐसा बताएंगे आप, यानी कि ये जो आपने बताया ना, जैसे 1:10:05 बताया, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ योर क्वांटिटी, बट दैट इज नॉट अ डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन हमने टाइम के लिए थोड़ी बताते कि ईस्ट डायरेक्शन में टाइम हो रहा है या वेस्ट डायरेक्शन में टाइम हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बताते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ, केवल और केवल इसके पास में भी क्या है, मैग्नीट्यूड है। फिर आता है टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं कि टेम्परेचर के अंदर, जैसे कि आज के हम पूछेंगे आपके शरीर का टेम्परेचर कितना है, या आज का टेम्परेचर कितना है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया, मिनिमम टेम्परेचर कितना गया, आपसे पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता। तो क्या हम मैक्सिमम या मिनिमम टेम्परेचर को जब बताते हैं तो क्या उस समय हमको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है ना। हम थोड़ी बताते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ क्या है कि बहुत सारे गर्मी है, और नॉर्थ और मतलब कि दक्षिण और उत्तर के साइड में गर्मी बहुत कम है, ऐसा तो नहीं बोलते ना। दैट मीन्स क्या बोलेंगे कि बस टेम्परेचर के लिए हमें क्या बताना होता है, उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो वो बताएंगे हम लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी हमें डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हुई, इसका मतलब ये भी हमारा कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। तो ऐसे क्वांटिटी जिसमें केवल और केवल क्या हो, केवल और केवल, अरे बच्चा एक बार इसको बंद करना, हाँ पूरा लगाना नहीं, बस ऐसे ही लगा, बंद कर, हाँ सिंपल, ठीक है। तो बहुत आवाज हो रहा था इसलिए हमने इसको थोड़ा सा बंद किया था। टेम्परेचर के अंदर में, टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास में, लेकिन क्या उसको हमें मेजर करने, हमें उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या डायरेक्शन की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी, इसलिए इसको भी हम लोग कैसा क्वांटिटी बोलेंगे बच्चा, इसको भी हम लोग कैसा क्वांटिटी बोलने वाले हैं, बोलो ना बच्चा, इसको भी हम लोग बच्चा स्केलर क्वांटिटी बोलने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग कि स्केलर क्वांटिटी होता क्या है, उसके डेफिनेशन पे आते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ये तो मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि स्केलर क्वांटिटी भी कैसा होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है, लेकिन उसके पास में केवल और केवल क्या होता है, ओनली अ मैग्नीट्यूड होता है। उसके पास में केवल और केवल क्या होता है बच्चा, मैग्नीट्यूड होता है। जैसे एग्जांपल के अंदर में मास को हम लोग केजी में मेजर करते हैं, वहां पे हमें जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम और डेंसिटी भी, वॉल्यूम भी। जैसे मैंने बोला, घर पे बोला मम्मी ने आपको 2 लीटर क्या लेके आने के लिए, मिल्क लेके आने के लिए, तो क्या आप उसको डायरेक्शन में थोड़ी लेके आओगे, सीधा लेकर के आओगे, मम्मी को दे दोगे, कहोगे कि लो मम्मी ये ईस्ट डायरेक्शन में आपको हमने मिल्क दिया है और आप हमें नॉर्थ डायरेक्शन में पीने के लिए देना है, ऐसा तो नहीं कहोगे ना, नहीं कहोगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसके भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कैसा क्वांटिटी बोलते हैं बच्चा, इस क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, कुछ वेक्टर के बारे में इंटरेस्टिंग चीजें जानते हैं कि वेक्टर क्या होता है। तो जब भी हम बात करेंगे बच्चा वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, जब भी हम लोग बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर में क्या होता है ना बच्चा, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ में क्या होता है बच्चा, डायरेक्शन होता है। क्या होता है बच्चा, मैग्नीट्यूड के साथ में एक डायरेक्शन भी होता है, और ये फॉलो करता है वेक्टर लॉ को, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। तो आप कहोगे कि सर अब डायरेक्शन कैसे पता चलेगा और क्या है, तो जैसे मैंने बोला कि आपका एक कंसेप्ट स्कूल है, यहाँ पे क्या है अपने के पास में, आपका एक कंसेप्ट स्कूल यहाँ पे है, और आपको आपका घर कहाँ पे है, सपोज कीजिए यहाँ पे आपका क्या है, घर है, ये आपका घर है, मतलब होम है। कंसेप्ट स्कूल है जहाँ पे आप पढ़ने आते हैं, और होम है जहाँ पे आप रेस्ट लेते हैं, या आपके मम्मी पापा घर पे हैं। अब बताओ इसके बीच में एक डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा, ऐसे थोड़ी कहीं से चले जाएंगे। आप बोलोगे सर मेरे स्कूल से
ईस्ट डायरेक्शन में या मेरे स्कूल से नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है, हमारा घर है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके घर का जो पोजीशन हम बता रहे हैं उसके हमें अंदर में क्या होगा कि उस घर के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत हो। सपोज करो मुझे आपका घर जाना है, घर पे जाना है, तो मैं क्या पूछूंगा कि बच्चा तुम्हारा घर कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ से निकल करके पहले आप जाइएगा ईस्ट डायरेक्शन में, फिर वहाँ से फिर आप नॉर्थ डायरेक्शन में जाइएगा, नॉर्थ डायरेक्शन से फिर आप आगे चल करके फिर से साउथ में जाइएगा, तो मेरा घर वहाँ पे मिल जाएगा, ऐसा कलर का मेरा घर है। इसका मतलब क्या किया तुमने बच्चा, वहां पे तुमने अपने घर के बारे में पूरा डिटेल बताया विथ अ डायरेक्शन कि ऐसे जाकर के ऐसे जाकर के ऐसे मिलोगे तो आपका घर मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें किसी का लोकेशन पता करना हो तो हमें उसका मैग्नीट्यूड, अब मैं तुमसे ये भी पूछूंगा ना कि तुम्हारा घर यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, तो तुम कहोगे कि सर 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है या 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। इसका मतलब तुमने 2 किलोमीटर जो बोला ना, ये 2 क्या दिया बच्चा, ये हमारे लिए मैग्नीट्यूड की बात हो गई ना। ये 2 किलोमीटर हमारे लिए क्या हो गया बच्चा, मैग्नीट्यूड। और तुमने जो मेरे को डायरेक्शन बताया था ना, ईस्ट जाना, साउथ जाना, नॉर्थ जाना, वेस्ट जाना, दैट इज द डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसके पास में क्या होता है बच्चा, मैग्नीट्यूड होता ही होता है, साथ में क्या होता है बच्चा, उसके साथ डायरेक्शन होता है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो आइए इसके बारे में भी हम कुछ चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें बातें करते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए आगे बात करते हैं। हमारे पास में वेक्टर के कुछ एग्जाम्पल है। जैसे मैंने बोला कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया एक जगह है, सिटी का नाम है कैलिफोर्निया। और उसके बाद में थोड़ा सा ये इधर है नॉर्थ कैरोलिना, तो इसके बीच का एक डायरेक्शन होगा। मतलब हम यहाँ पे कुछ पीछे से आना चाहिए था, अच्छा चलो यहाँ पे है हमारे पास में। तो हमने क्या बोला, कैलिफोर्निया एक जगह है, एक जगह है, इसका मतलब उसका एक पोजीशन होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर में, पूरे मैप के अंदर में कहीं ना कहीं एक कैलिफोर्निया जगह होगा। तो उस पोजीशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, कैसा क्वांटिटी, पोजीशन हमेशा क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। क्या है कि वो किसी जगह को बता रहा है, इसलिए वो कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। और हमने बोला कि कैलिफोर्निया से मतलब वेस्ट डायरेक्शन में जब जाते हैं तो हमारे पास में नॉर्थ कैरोलिना मिलता है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ कैलिफोर्निया फ्रॉम द नॉर्थ कैरोलिना इज द 3600 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ कैरोलिना से कैलिफोर्निया जो है वेस्ट डायरेक्शन में है। जैसे मैं बोलूँगा कि इंडिया जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है अपने मैप के अंदर में, तो आप क्या बोलोगे, इंडिया जो है मैप के अंदर, जिसको मैप आता होगा वो बोलेगा कि इंडिया कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर जिसको मैप नहीं आता होगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नहीं आता होगा, वो तो नहीं बता पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें देखा, यहाँ पे क्या देखा कि एक फिजिकल क्वांटिटी है। समझने की कोशिश करो, कैलिफोर्निया एक जगह है, जगह का मतलब क्या हुआ, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि इसका एक पोजीशन होगा वर्ल्ड, मतलब कि मैप के अंदर में कहीं ना कहीं एक पोजीशन होगा इसका मतलब ये कैसा क्वांटिटी हो गया बच्चा, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। लेकिन हमारे पास में जो ये 3600 किलोमीटर आया, दैट इज द क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। कि तुम इससे नॉर्थ कैरोलिना से तुम 3600 किलोमीटर अगर जाते हो तो तुम्हें, वो भी वेस्ट डायरेक्शन में अगर जाते हो तो कौन मिलेगा तुमको, कैलिफोर्निया मिलेगा। इसका मतलब हमने क्या क्या बताया, उसका डायरेक्शन बताया, डायरेक्शन क्या बताया मैंने बच्चा, वेस्ट डायरेक्शन। और हमने क्या बताया, उसका डिस्टेंस बताया, क्या बताया डिस्टेंस, कि सर 3600 किलोमीटर है। तो पोजीशन ऑफ अ कैलिफोर्निया फ्रॉम द नॉर्थ कैरोलिना इज कितना है बच्चा, 3600 किलोमीटर। तो ये हमारा एक क्लस्टर ऑफ द, मतलब कि हम एक एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच रहे हैं कि ये बंदा अगर 3600 जाएगा ना तो पक्का कैलिफोर्निया तो पहुंच ही जाएगा। या मैं ऐसे बोलूँगा कि तुम स्कूल से 2 किलोमीटर नॉर्थ जाओगे तो पक्का तुम यहाँ पे पहुंच जाओगे। या तुम स्कूल से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर अगर साउथ जाओगे तो तुम इस जगह पे पहुंच जाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने उसको एक एग्जैक्ट
पोजीशन बताया कि तुमको यहाँ पहुँचना है तो ये डायरेक्शन भी लो और ये इतना चलने के बाद मिलेगा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी बताया बच्चा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे और भी एग्जांपल ले लो, जैसे यूएसए है, यूएसए से चाइना के अंदर में एक, यूएसए और चाइना के अंदर में एक डिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि यूएसए से चाइना आना है तुमको, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, उससे हमें ईस्ट डायरेक्शन में, यूएसए से किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में अगर तुम कितना 11,600 किलोमीटर अगर चलते हो तो तुम क्या पहुंच जाओगे, चाइना पहुंच जाओगे। अगर चाइना से इंडिया आना होगा तो यहां से आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या बताया यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट जो हुआ हमारे लिए चाइना, यूएसए से चाइना के लिए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या कहलाएगा। ये थोड़ा सा बार बार पीछे हो जा रहा है, आई डोंट नो क्यों, बट चलो ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने यूएसए से हमने जो डिस्टेंस बताया कहाँ पे पहुँचने के लिए, चाइना पहुँचने के लिए, ये हमारे पास में एक पोजीशन है और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक डिस्प्लेसमेंट हुई हमारी। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी हो गया बच्चा, हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास में 11,600 जो किलोमीटर है, ये क्या मिल गया बच्चा हमारे लिए, मैग्नीट्यूड मिल गया। और यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन मतलब किधर की तरफ चलना है, ईस्ट डायरेक्शन में, दैट इज द डायरेक्शन मिल गया हमको। तो ऐसे क्वांटिटी जिसके अंदर में मैग्नीट्यूड, समझने की कोशिश करो, जिसके अंदर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होगी, तो ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलेंगे हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो अब लगता है कि मुझे कि आपको वेक्टर और स्केलर समझ में आ गया होगा। बट ये तो बहुत ही आसान था, लेकिन यहाँ से तो आपका काम ही नहीं चलने वाला। ये तो बस जस्ट अभी हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन के बाद में कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास में डेफिनेशन क्या कहता है, अ वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। मतलब वेक्टर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एंड द फोर्स। अब तुम कहोगे सर एक्सेलरेशन मतलब आपने कभी बाइक चलाया होगा, अगर आपने बाइक चलाया होगा तो बाइक की स्पीड बढ़ानी होती है। अगर बाइक की स्पीड या कार की स्पीड बढ़ानी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक्सेलरेट करना पड़ता है। किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना पड़ता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे पीछे की तरफ एक्सेलरेट करते हैं तो बाइक का स्पीड बढ़ जाता है। इसका मतलब एक उसका डायरेक्शन फिक्स कर दिया है ना कि पीछे की तरफ करोगे तो उसके स्पीड क्या होगा, बढ़ने लगेगा, क्योंकि बाइक एक्सेलरेट होगा। इसका मतलब सब में डायरेक्शन है, हाँ है। फोर्स, फोर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज कर लो कि हम इसके ऊपर में लिख रहे हैं या हम इसके ऊपर में प्रेस कर रहे हैं, तो क्या एक डायरेक्शन है कि इसके भीतर की तरफ प्रेस कर रहे हैं, तो ये डायरेक्शन बोल रहे हैं ना बच्चा, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सारे चीज़ें जो है हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है जो आपको समझना है, याद करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर को। अगर हमारे पास अभी स्केलर को तो कोई रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास में तो केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है ही नहीं। लेकिन क्या वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जरूरत है क्या, तो हाँ, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जरूरत है। तो वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा, इधर देखो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक उसके अंदर में टेल होता है और एक उसके अंदर में हेड होता है। टेल मतलब एरो पहले बनाते हैं, एरो का मतलब क्या होता है, वेक्टर। तो एरो बना दिया और इसके अंदर में एक क्या होगा बच्चा, टेल होगा, और एक हमारे पास में क्या होगा, हेड होगा। याद रखना क्या होगा, एक टेल होगा और एक हमारे पास में हेड होगा। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके पास में एक टेल होना जरूरी है बच्चा। टेल इस वाले पोजीशन को बोलते हैं और एरो वाले पोजीशन में हेड बोला जाता है बच्चा। और इसके बीच का जो ये लेंथ है ना बच्चा, दैट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको बच्चा, दैट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। तो आपको कैसे पता चले, अच्छा ये थीटा एंगल, मैंने बोला क्या कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने ऊपर है, तो थीटा एंगल, थीटा का नाम सुनिएगा। थीटा एंगल मतलब 30 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन बोलते हैं। अब बोलोगे सर ऐसा तो कहीं देखा है कि आपने,
आप सोच के देखो, आपने कभी देखा है कि लाइफ में कि ऐसा एरो लगा हुआ हो, जैसे आप जाओगे शहर में जाओगे या यहाँ से आप बाहर निकलोगे, आप देखोगे एक बोर्ड लगा होगा, बोर्ड के ऊपर में दिख रहा होगा कि सगरौली जो है ना यहाँ से 20 किलोमीटर इस डायरेक्शन में है, या बड़े से बोर्ड लगे रहते हैं वहाँ पे लिखा जाएगा बोधन जो है ना यहाँ से 26 किलोमीटर जो है इस डायरेक्शन में। तो वहाँ पे क्या है, एक एरो से वो लोग दिखाते हैं कि इस डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, आप सगरौली पहुँच जाओगे, अगर इस वाले डायरेक्शन में जाओगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, बोधन पहुँच जाओगे। तो इसका मतलब क्या, वो डायरेक्शन बताया आपको कि बच्चा आप इतना से इतना किलोमीटर जाएंगे ना, जैसे आप जाते होंगे कहीं पे भी जाते होंगे ना, घर से बाहर अगर आप निकले होंगे कभी लाइफ में, तो आपने देखा होगा रोड के ऊपर में क्या लगा रहता है बच्चा। आप घर से बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे रोड के ऊपर में, 1 मिनट पीछे करने दो पहले। हाँ, आप अगर घर से बाहर जब जाएंगे ना बच्चा, तो आप देखेंगे रोड के ऊपर में एक डायरेक्शन लगा रहता है। कहीं पे भी एक चौराहा पे आप खड़े होइएगा तो वहां पे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होते हैं ना वो एक डायरेक्शन लगाते हैं कि इस डायरेक्शन में जाइएगा तो आप इस जगह पे पहुंच जाइएगा। जैसे मैं एक चौराहा लेता हूं आपको समझाने के लिए, सपोज कीजिए कि ये है करला फाटक का चौराहा है अपने पास में, ये भी कभी कभी काम नहीं करते हैं, सॉरी डूड। चलिए आइए, तो आपको हमने क्या बोला बच्चा, इधर देखिए, ये पता नहीं क्या हो गया। चलिए आइए देखिए बच्चा, तो ये है अपना करला फाटक का चौराहा है, मान लेते हैं। करला फाटक से इधर से हम लोग आते हैं बिलौली से, ठीक है, और इधर चले जाते हैं बोधन, अच्छा इधर चले आते हैं सगरौली, इसी तरह से इधर जाने का कहीं पे है, हमें नहीं पता कहाँ पे जाना है। अब आप यहाँ पे जब जाओगे ना बच्चा, तो यहाँ पे एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ होगा, बड़े सा जो सरकार जो होता है ना कि एक बोर्ड लगाए रखते हैं, उसके ऊपर में एक लिखा रहता है कि आप अगर ऐसे सीधा चलते हैं तो आप पहुंच जाएंगे बोधन। इसका मतलब आपने जब वहां पे ये एरो देखा होगा ना बच्चा, इस तरह का एरो बना हुआ देखा होगा, तो ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आया कि नहीं। इस एरो के नीचे वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे, और इस एरो के सामने वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर की एक डायरेक्शन फिक्स है कि टेल टू हेड जाना है। इस तरह से अगर इधर जाना है तो आपको इस तरह से बनाया होगा, इधर की तरफ एरो लगा होगा, तो आप समझ जाओगे कि अगर मेरे को सगरौली जाना है इसका मतलब इधर की तरफ जाना है, तो ये हमारा डायरेक्शन है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, और वेक्टर के अंदर में एक टेल होता है और वेक्टर के अंदर में एक क्या होता है, हेड होता है। और जितना भी हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, यानी कि वो डिपेंड करता है हमारे लेंथ ऑफ द वेक्टर का रिप्रेजेंट। जैसे कि इसका लेंथ कितना है बच्चा, यहां से लेकर करके यहां तक है, इसका मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। बात यहां तक समझ में अगर आ गया हो तो मैं आपको और समझाने की कोशिश करूंगा। तो आ जाओ, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के अंदर में हम लोग कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपके यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप देखिए। देखिए, दे आल्सो रिप्रेजेंट बाय द सिंगल कैपिटल्स लेटर, अगर उसको कैपिटल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने बोला सी और उसके ऊपर में एक एरो लगा दिया, इसका मतलब ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। मतलब कि अगर आप किसी लेटर को लिखते हैं, लेटर के ऊपर में एक एरो लगा देते हैं, तो बच्चा वो भी किस में बदल जाता है, वो वेक्टर के अंदर में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने ए और एक एरो लगा दिया और नीचे हमने दिखा भी दिया कि है। जैसे बी है तो बी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके ऊपर में एक एरो लगाएंगे और नीचे की तरफ इस तरह से दिखा दिए। पी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो पी के अंदर में एक एरो लगा दिए और इसके बाद में, मतलब कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है ना, वैसे बोलूंगा कि रोहन सर एक वेक्टर क्वांटिटी है, सपोज करो रोहन सर एक ऐसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या लिखूंगा मैं, रोहन लिख दूंगा, ठीक है। और इसके ऊपर मैं क्या लगा दूंगा बच्चा, अगर मैं डायरेक्शन लगा दूंगा तो कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। बात समझ में आएगा। तो कुछ भी जो भी अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा और उसने बोला कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो मैं बोलूंगा कि सर जो भी चीज, जैसे मैंने को बोला डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट को डी डिनोट कर दूंगा और उसके ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, मैं एक वेक्टर लगा दूंगा, तो ये क्वांटिटी किस में बदल जाएगा, वेक्टर में बदल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके पास में एक एरो लाइन होता है, एरो का एक हेड होता है और एक टेल होता है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग और भी चीजें को समझाते हैं। जैसे अगर मेरे को किसी ने बोला कि
पोजीशन बताना है। पोजीशन का मतलब क्या है कि मेरा पोजीशन इस रूम में, मेरा पोजीशन इस दरवाजे से 5 मीटर डिस्टेंस पे है, तो हम क्या करूंगा कि उस दरवाजे से 5 मीटर इधर की तरफ एरो लगा दूंगा तो मेरा पोजीशन मिल जाएगा। इसी तरह से हमारे फिजिक्स के अंदर में भी एक पोजीशन होता है, मतलब हमें क्या पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स के अंदर में एक्स एक्सिस पढ़ना पड़ता है और वाई एक्सिस पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है बच्चा, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। नीचे वाला पोर्शन को हम लोग माइनस वाई एक्सिस बोलते हैं और इधर वाले पोर्शन को माइनस एक्स बोलते हैं। ये सब पोजीशन है, याद रखने का है जगह, और इस जगह को हम लोग जहां पे ये चारों मिलते हैं उसको हम लोग 0,0 बोलते हैं। अब मैं बोलूंगा कि 0,0 को भी ओरिजिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चा, ओरिजिन बोला जाता है। तो ओरिजिन से, ओरिजिन को ओ से डिनोट कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ना हो ये चीजें, इसलिए ठीक है ना। तो ओरिजिन बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं ओ लिख, ओहो ये तो गया। हाँ, तो इसमें हमने क्या किया बच्चा कि यहाँ पे हम लोग इसको ओरिजिन बोलते हैं। तो ओरिजिन से अगर कोई बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई बंदा पी पॉइंट पे बैठा हुआ है ओरिजिन से, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पोजीशन बताएंगे कि ओरिजिन से ये इतने डिस्टेंस पे है, तो एक एरो लगा कर करके हम उसको दिखाएंगे कि ये इतने डिस्टेंस पे है। इसका मतलब हमने इसका डायरेक्शन बताया, और जैसे ही डायरेक्शन बताया ना बच्चा, तो ये इसका पोजीशन बताया। तो फिजिक्स के अंदर में जब भी आपसे पोजीशन का काम करे तो आप आर वेक्टर से उसको डिनोट करोगे। पोजीशन को किस वेक्टर से डिनोट करोगे बच्चा, आर वेक्टर से डिनोट करोगे। तो ये भी ध्यान में रखना। अगर किसी बंदे ने फिजिक्स के अंदर में बोला स्पीड, लेकिन स्पीड के साथ में बोल दिया कि नहीं इसका डायरेक्शन भी है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। और जब भी वेलोसिटी लिखेंगे तो वी के ऊपर में एक क्या दिखाएंगे, एरो दिखाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? जब एरो दिखा देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, स्पीड जो था, देखिए देखो बच्चा इधर समझो, स्पीड को हम लोग वी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्पीड को वी से। और ये जैसे ही अगर हमने इसके ऊपर में एरो नहीं दिखाया, इसका मतलब ये कौन सा क्वांटिटी हो गया, ये अभी स्केलर क्वांटिटी हो गया। कैसा क्वांटिटी हो गया बच्चा, ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर में हमने क्या दिखा दिया, एक एरो दिखा दिया। एरो मतलब हमने इसको एक डायरेक्शन दे दिया, इसका मतलब ये कैसा क्वांटिटी हो गया बच्चा, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो समझने की पूरा कोशिश करो तभी जाकर करके होगा। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन स्पीड जो होता है बच्चा वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ये सारी चीजें क्वेश्चन में आ सकते हैं एग्जाम के अंदर में, इसलिए ध्यान रखना। फोर्स, फोर्स एक कैसा क्वांटिटी है, तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि हम जब भी किसी बेंच पे बैठते हैं तो हम फोर्स किधर की तरफ लगाते हैं, नीचे की तरफ लगाते हैं, ऊपर की तरफ थोड़ा ही लगाते हैं। इसका मतलब नीचे की तरफ एक डायरेक्शन दिखा रहे हैं ना, तो यानी कि फोर्स कैसा क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। मतलब कहीं पे भी फोर्स लगाना है, सपोज करो मैं इसके ऊपर में धक्का लगाऊंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में क्या कर रहा हूं ना कि धक्के लगा रहा हूं, पुल कर रहा हूं। इसका मतलब इसके पास में क्या है, एक डायरेक्शन है। इसका मतलब ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी फोर्स लिखेंगे तो एफ पे क्या लिखेंगे, एक एरो लिखेंगे। इसका मतलब हुआ कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आगे अगर आपको समझ में नहीं आए, मान लेते हैं कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप स्कूल में जब आइएगा तब हमसे आराम से पूछ सकते हैं। कोई डर नहीं है, डरने की तो ज़रूरत ही नहीं है, 100% बताएंगे। लेकिन यहाँ से भी आप समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद भी पूछिए, तब देखिए आपको कितना अच्छा हो जाएगा फिजिक्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। देखो स्केलर के बारे में सर टाइप नहीं बात की आपने, स्केलर का टाइप ही नहीं होता ना बच्चा, उसका डायरेक्शन ही नहीं है। तो क्या टाइप, जिसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है, आप बताइए ना, आपका कोई डायरेक्शन नहीं है कि हमको करना क्या है, तो आपको क्या टाइप से जरूरत है। जिसको करना होगा ना उसके लिए ना डायरेक्शन की जरूरत है। जैसे सपोज आपको कुछ नहीं करना लाइफ में, तो क्या कीजिए, आइए जाइए पढ़िए, नहीं पढ़ना नहीं पढ़िए। लेकिन जिसके पास में एक फिक्स डायरेक्शन है कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें ये एनडीए निकालना है, हमें ये करना है, तो उसका एक डायरेक्शन फिक्स है, तो उसके पास में टाइप्स भी होंगे, अलग अलग डायरेक्शन का अलग अलग टाइप्स होंगे। हमें अगर डॉक्टरी करना है तो ये पढ़ना पड़ेगा, हमें अगर इंजीनियर बनना है तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा, हमें एनडीए करना है तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा। मतलब अलग अलग टाइप्स है उसके भी। तो इसी तरह से हमारे पास में वेक्टर है, तो वेक्टर के भी
क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो आइए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल वेक्टर के बारे में कि पैरेलल वेक्टर होते क्या है। तो देखिए, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल। अब देखिए, एक वेक्टर की बात नहीं होगी, जब भी बात होगी पैरेलल की तो टू वेक्टर्स की बात होगी। दो वेक्टर आपस में पैरेलल कब हो सकते हैं? तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी द वेक्टर इफ दे हैव द सेम डायरेक्शन। अगर मैं बोलूं कि दो बच्चा, जैसे कि मैं बोलूंगा कि दो बच्चा आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हम क्या बोलूंगा, दोनों बच्चा आईआईटी के बैच में बैठेगा, क्योंकि आईआईटी के बैच में बैठेगा तभी तो आईआईटी की तैयारी करेगा। इसी तरह से दो वेक्टर अगर कहेंगे कि अगर दो वेक्टर अगर पैरेलल है आपस में, तो इसका मतलब क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। जैसे मैंने बोला ए वेक्टर, तो ए का डायरेक्शन किधर है बच्चा, ऊपर की तरफ, और बी का भी डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ऐसे कैसा वेक्टर कहलाएगा बच्चा, ये पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। इसी तरह से देखो, पी का डायरेक्शन जो है इधर की तरफ है और क्यू का डायरेक्शन भी इधर की तरफ है। इसका मतलब क्या होगा, ये भी पी और क्यू आपस में क्या होगा बच्चा, पैरेलल वेक्टर होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं, देखना और बताना, क्या ये पैरेलल वेक्टर है? क्या ये मैंने बोला आर और ये बोला एस, क्या आर एस वेक्टर इज द पैरेलल वेक्टर? नहीं सर, इसका डायरेक्शन इधर है और आर का डायरेक्शन इधर है, तो ये क्या बोलेंगे, नॉट पैरेलल वेक्टर। क्या बोलेंगे बच्चा इसको, नॉट पैरेलल वेक्टर। लेकिन अगर हमने लिया ऐसे एग्जांपल, देखना ये वेक्टर है सी वेक्टर और ये वेक्टर जो है हमारे पास में डी वेक्टर है, तो क्या ये दोनों पैरेलल वेक्टर है? तो तुम एकदम बोलोगे यस सर, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। तो पैरेलल वेक्टर का क्या डेफिनेशन हुआ बच्चा, कि पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसके पास में मैग्नीट्यूड सेम होता है और क्या होता है, सॉरी, जिसके पास में डायरेक्शन सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। देखो, इसका लेंथ क्या है, छोटा है, इसका लेंथ क्या है, ग्रेटर है। इसका मतलब क्या हो, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डायरेक्शन सेम हो तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे बच्चा, पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। आइए नेक्स्ट वेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है? अब देखो, दो चीजें इक्वल होते हैं। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है कि सब जो है, जैसे कि भारत सरकार क्या बोलता है, कानून के नज़र में सारे के सारे जो भी इंडियन लोग हैं सब के सब इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि कानून का जो एक नियम कानून है ना, उसके दायरे में जितने भी ये चीजें आते हैं ना, सब इक्वल है, मतलब कि उसके अलावा कुछ नहीं है, बाकी जो भी है। इसी तरह से हमारे पास में क्या होता है, एक इक्वल वेक्टर होता है। टू पैरेलल वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। दो पैरेलल वेक्टर को इक्वल कब बोलेंगे, उसके पास में क्या होना चाहिए, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। लेकिन एक चीज यहां पे छूट गया है, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होना चाहिए। समझा बच्चा, ये छूट गया टाइपिंग में, तो आप लिख लीजिएगा, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन दैट इज कॉल्ड द, बोलो जल्दी से, क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। जैसे मैंने बोला ए का, देखो ए का लेंथ और बी का लेंथ, दोनों का लेंथ क्या है, सेम है, दैट मीन्स ए और बी जो है इक्वल वेक्टर है। और वेक्टर है तो उसके ऊपर में एरो लगाना नहीं भूलना है बच्चा। इसी तरह से पी का और क्यू का देखो डायरेक्शन सेम है और दोनों का लेंथ भी सेम है, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, इक्वल वेक्टर बोलेंगे, याद रखना। तो इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होते हैं। जैसे मैंने बोला 10 kg, मैं एक एरो दिखा रहा हूं, ये एरो 10 kg क्या है, 10 न्यूटन फोर्स का डायरेक्शन है। और दूसरा मैंने एरो दिखाया और बोला ये भी 10 न्यूटन फोर्स का डायरेक्शन है, ये बी वेक्टर है, मैंने बोल दिया ये बी वेक्टर है, और ये क्या है बच्चा हमारे लिए, ए वेक्टर है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, मैग्नीट्यूड। तो देखो मैग्नीट्यूड इसका कितना है सर, 10, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, 10। लेकिन सर दोनों का डायरेक्शन चेक करेंगे, डायरेक्शन भी दोनों का सेम है, इसका मतलब ए और बी जो है ना वो इक्वल वेक्टर है। ए और बी कैसा वेक्टर है बच्चा, इक्वल वेक्टर है। अब बात समझ में आ गया तुमको, इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है। तो चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग टाइप करते हैं, जिसका नाम है एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या नाम है बच्चा, एंटी पैरेलल वेक्टर। जैसे कि हमने तुमको बोला पढ़ने के लिए, तुम कहोगे नहीं मैं तो नहीं पढ़ रहा, तुम जो भी करना कर लो, नहीं पढ़ूंगा मैं, मेरी मर्जी है। इसका मतलब क्या है, तुम मेरे एंटी हो, मतलब तुम पे मेरे को गुस्सा आएगा, तुम नहीं पढ़ोगे मेरे को गुस्सा आएगा। क्यों, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ पूरे दिमाग जोर और जोश से, और तुम क्या करो, नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा। इसका मतलब क्या, तुम मेरे एंटी हो गया। इसी तरह से एक होता है एंटी पैरेलल वेक्टर होता है। कैसा वेक्टर होता है बच्चा, एंटी पैरेलल। मतलब टू वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर्स इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ,
कि मेरा डायरेक्शन कुछ और था, पढ़ाने का मेरा इंटेंसिटी था, आपका पढ़ने का नहीं इंटेंसिटी था। इसका मतलब आपका और मेरे में क्या हो गया, एक अपोजिट फोर्स लगा, अपोजिट एक डायरेक्शन हुआ हमारे आपके बीच में, दैट इज कॉल्ड द अपोजिट। इसी तरह से दो वेक्टर अगर आपस में अपोजिट हो, मतलब एक वेक्टर का देखो एरो किधर है, आगे की तरफ है, दूसरे वेक्टर का एरो किधर है, इधर की तरफ है, दोनों का एरो चेंज हो गया, दैट मीन्स दोनों के दोनों अपोजिट वेक्टर है। इसी तरह से इस वाले वेक्टर के अंदर में भी देखो, एक का पी वेक्टर का एरो इधर है और क्यू वेक्टर का एरो किधर है, इस साइड है। इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो गया हमारे लिए, बोलो अपोजिट वेक्टर हो गया। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट भी कर सकते हैं कि यस सर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है वो भी कमेंट कर सकते हैं यस नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आता है नेगेटिव वेक्टर्स। तो आइए नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, जब दो एंटी पैरेलल वेक्टर जो है ना उसका मैग्नीट्यूड सेम हो जाए और एंटी पैरेलल में हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो समझिएगा एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है। द टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। मतलब क्या हुआ, दो वेक्टर जो एंटी पैरेलल हो लेकिन क्या हो, मैग्नीट्यूड सेम हो। जैसे ए वेक्टर इधर की तरफ है और बी वेक्टर इधर की तरफ है, दोनों के बीच में मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है, तो ये कैसा कहलाएगा, एंटी पैरेलल। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं तब तुमको समझ में आएगा। मैंने बोला 10 न्यूटन इधर की तरफ, ठीक है, मैंने बोला इधर 10 न्यूटन इधर की तरफ। अब बताओ दोनों क्या एंटी पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो ऐसा वेक्टर जो एक दूसरे से एंटी पैरेलल हो और उसका मैग्नीट्यूड सेम हो, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया, चलो आ जाओ इधर आ जाओ। अब कुछ चीजें पहले समझ लो फिर आगे की चीजें बातें करेंगे। हमारे पास में ना अर्थ है, अर्थ के पास में क्या होता है, एक मिनट रुक जाओ, हमारे पास में क्या होता है बच्चा कि हमारे पास में एक नॉर्थ डायरेक्शन होता है और एक ईस्ट डायरेक्शन होते हैं, एक वेस्ट होते हैं, एक साउथ होते हैं। तो पहले मैं समझाता हूं फिर आप समझना फिर बात कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, इसको हम लोग वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, इसको हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग साउथ डायरेक्शन बोलते हैं। याद रखना ये चीजें क्योंकि ये समझ में आएगा। तो अभी हमारे पास में मैंने बोला है ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर ईस्ट की तरफ जा रहा है, ए वेक्टर किधर की तरफ जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। और हमने बोला उसी समय में मैंने बोला कि अब बी वेक्टर वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। बी वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है बच्चा, वेस्ट डायरेक्शन में। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का ये एरो जो है सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, एंटी। क्या कि एक ईस्ट तरफ जा रहा है एक वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो दोनों क्या होगा, एंटी वेक्टर। एंटी वेक्टर में भी कौन सा होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैसा वेक्टर होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा। याद रखना ऐसे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से। जैसे मैं बोलूंगा, जैसे समझाने के लिए कुछ और एग्जाम्पल लेता हूं ताकि तुमको और अच्छे से समझ में आए। मैंने आपको वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बता दिया था, तो हम थोड़ा सा अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा फिर आगे की टाइप ऑफ द वेक्टर्स पढ़ेंगे। पहले आप एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कहाँ गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में आ जाइए तो बताते हैं आपको। हाँ यहाँ पे आ जाइए, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने बोला आपको कि रिप्रेजेंट करो 10, ओहो क्या हो गया इसको, हाँ मैंने आपको बोला कि रिप्रेजेंट कीजिए 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स इन ईस्ट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में बच्चा, ईस्ट डायरेक्शन में। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको, 10 न्यूटन फोर्स इन ईस्ट डायरेक्शन, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो सर आप बनाओगे पहले क्या बनाओगे बच्चा, एक तो ईस्ट डायरेक्शन बनाओगे, एक नॉर्थ डायरेक्शन बनाओगे, एक वेस्ट डायरेक्शन बनाओगे और एक क्या बनाओगे बच्चा, साउथ डायरेक्शन बनाओगे। बना लिया आपने। अब 10 न्यूटन है, किधर की तरफ है, ईस्ट में है, तो एक एरो लेंगे, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, एक एरो लेंगे और पहले तो 1, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, इसके बाद में 4 लिख देते हैं, इसके बाद में 5 लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं, इसी तरह से 7 लिखेंगे। इसी तरह से हमारे पास में क्या होगा बच्चा, इधर हम और ऐड कर देते हैं आपको समझाने के लिए, इधर लिख देते हैं 8 लिख देते हैं, सॉरी 6 के हो, थोड़ा सा मैंने गलती क्या कर दिया जानते हो, हम 2 का गैप ले लेते तो अपना जल्दी से हो जाता। तो यहाँ पे 2 लिए तो 4 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, यही हुआ। अब हमसे क्या बोला है कि 10 न्यूटन हमको ईस्ट में जाना है, 10 न्यूटन किस में जाना है, ईस्ट में जाना है। इसका मतलब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक एरो लूँगा और 10 पे ले जा करके छोड़ दूंगा, ये हमारा टेल कहलाएगा और ये हमारा क्या कहलाएगा, हेड कहलाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। कहीं कहीं पे आपको ऐसे लिखेगा कि 100 मीटर
वेस्ट डायरेक्शन में जाना है। किस डायरेक्शन में जाना है? 100 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में जाना है। तो अब आप सोचिए कि कॉपी पेन पे अगर आपको बनाना है तो 100 मीटर तो 100 पॉइंट तो नहीं लेके जाएंगे, तो हम एक पॉइंट को बोलेंगे कि ये 10 मीटर का एक पॉइंट है। तो अगला कितना हो जाएगा? 20 का हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 30 का हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास में? 40 का हो जाएगा। चलो हम मान लेते हैं 40 मीटर हमको वेस्ट जाना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक डायरेक्शन बनाएंगे और 40 मीटर पे जाकर करके इसको छोड़ देंगे, ये हमारा डायरेक्शन बता देगा। इसी तरह से आपसे पूछेगा, बस ये थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप प्लीज इसके अंदर में कमेंट कीजिएगा, ये सब समझ करके लिख लीजिएगा अच्छे से। चलिए हम और चीजें करते हैं, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? चीजें पढ़ते हैं, क्या है कि पहले समझाना बहुत जरूरी है आपको। चलिए आइए इधर आ जाइए। तो हम लोग क्या करते हैं कि आपके पास में एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप करके आइएगा। 60 न्यूटन हम लिख रहे हैं आपके लिए, 60 न्यूटन नॉर्थ डायरेक्शन, ये करके आइएगा। 60 न्यूटन नॉर्थ डायरेक्शन, 30 न्यूटन, ये कॉपी पे बना के आइएगा, साउथ डायरेक्शन, 45 मीटर पर सेकेंड इन द वेस्ट डायरेक्शन। तो अब हम जो भी चीज़ें दिखाएंगे, हमें नॉर्थ साउथ ये दिखाने आता है, तो उसके ऊपर में क्या करेंगे? अपने अनुसार, कन्वीनियंट के अनुसार हम लोग क्या करेंगे? एक डायरेक्शन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो इतना आप सॉल्व करके आइए, फिर हम लोग क्या है नेक्स्ट जो है लास्ट, अभी हम टाइप्स खत्म कर करके जा रहे हैं ताकि आप इसको कंप्लीट कर लीजिए कॉपी के अंदर में। नेगेटिव वेक्टर हो गया था, इसके बाद में लास्ट हमारे पास में है कोलिनियर वेक्टर। 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी द कोलिनियर वेक्टर। कब? जब दे आर एक्ट अलोंग द सेम लाइन, मतलब सेम लाइन पे कोई लग रहा हो वेक्टर, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि मैं बोलूंगा एक वेक्टर आगे की तरफ जा रहा है और इसी लाइन में एक वेक्टर इधर से आने लगा, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर। लेट सपोज करो कि आप स्कूटी चलाते हुए सीधे सीधे जा रहे थे और आपके सामने भी एक स्कूटी चलाते हुए सामने सामने आ गया, तो आप दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? कोलिनियर हो गए ना। इसी तरह से अब उसी का नाम दे दिया गया कोलिनियर वेक्टर। तो आमने सामने या एक ही लाइन में चले तो कोलिनियर, मतलब ऐसा नहीं कि आमने सामने ही हो जाए। जैसे कि एक देखो यहाँ पे वेक्टर क्या है? पी वेक्टर इधर जा रहा है और इसी लाइन में एक क्यू वेक्टर भी पीछे से आ रहा है, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग? कोलिनियर वेक्टर। कुछ एग्जाम्पल आपको पता है? जैसे कि मंदिर में, कहीं कहीं पे मंदिर पे आप जाइएगा तो वहां पे बहुत भीड़ लगते हैं, तो क्या करते हैं? वहां पे भीड़ लगते हैं तो एक के पीछे एक लगा देते हैं, और एक के पीछे, चाहे घर आपके स्कूल के अंदर में प्रार्थना होता है, जिस समय असेंबली होता है, उस समय क्या होता है कि एक के पीछे एक बच्चा लग जाता है। इसका मतलब वो कौन सा है? एक ही लाइन में एक के पीछे एक बच्चा लगा हुआ है, तो इसका मतलब कोलिनियर हो गया कि नहीं हो गया? इसी को हम लोग वेक्टर के फॉर्म में क्या बोलेंगे? कि कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। और कोलिनियर वेक्टर के अंदर में हम लोग एरो भी दिखाएंगे, और क्या दोनों सामने सामने भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक के पीछे एक होगा, आमने सामने भी होगा, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। तो ये भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो आगे की बातें करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या होता है कि एक वेक्टर जो एक ही जगह से बहुत सारे वेक्टर निकला हो, एक ही पॉइंट से। जैसे देखो यहाँ पे एक ही पॉइंट है और यहाँ से एक सी वेक्टर निकला, एक ए वेक्टर निकला, एक डी वेक्टर निकला और एक इधर से निकला। तो ये सारे जो है एक ही, 2 और मोर देन द वेक्टर आर सेड टू बी द कोलिनियर वेक्टर इफ दे हैव द कॉमन इनिशियल पॉइंट। मतलब क्या हुआ? कॉमन इनिशियल पॉइंट, जो जहां पे भी कॉमन इनिशियल पॉइंट होंगे ना बच्चा, ये आया नहीं, जहां पे भी कॉमन इनिशियल पॉइंट होगा ना बच्चा, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे मैंने बोला यहाँ से 10 मीटर ईस्ट में रोहन का घर है। 10 मीटर ईस्ट में किसका घर है? रोहन का घर है। मतलब ये आपका स्कूल है, ये मान लेते हैं ना, ये आपका स्कूल है। और इस स्कूल से 10 मीटर नॉर्थ में मान लेते हैं किसका? राव सर का घर है। किसका घर है? ये राव सर का घर है। और यहाँ से 20 मीटर मान लेते हैं, या 20 मीटर या 20 किलोमीटर मान लेते हैं, 20 मीटर डिस्टेंस पे किसका है? राहुल सर का घर है। यानी कि ये है हमारे नॉर्थ में, राहुल सर का घर मान लेते हैं साउथ में है। ये राहुल सर का घर है, ये राहुल सर का घर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब, एक मिनट बस बता रहे हैं, जब भी यहाँ से आप समझिएगा, जब भी राहुल सर, ये है कौन सा? राहुल सर मान लेते हैं, और इधर जो है मान लेते हैं, एक और डायरेक्शन ले लेते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं कि इधर है, मान लेते हैं इधर क्या करते हैं? वर्मा सर का घर बता देते हैं, वर्मा सर का।
यहाँ से आपके स्कूल से, कंसेप्ट स्कूल से बर्मा सर का 20 मीटर पे डिस्टेंस पे है। तो अब होगा क्या कि हमारा जो इनिशियल पोजीशन होगा, मतलब स्कूल जो है हमारा एक पोजीशन है, सारे टीचर का पोजीशन है, जहाँ पे सारे टीचर एक जगह मिलते हैं। और उसके बाद वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करते हैं कि एक डायरेक्शन में निकलते हैं अपने घर के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पोजीशन हुआ ना, जहाँ पे एक ही जगह से बहुत सारे डायरेक्शन के लिए डिवाइड होते हैं चीज़ों को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर इफ दे हैव अ कॉमन इनिशियल पोजीशन। यानी पॉइंट भी बोल सकते हैं या इनिशियल पोजीशन भी बोल सकते हैं। तो स्कूल को मान लेते हैं एक इनिशियल पोजीशन है, वहां पे सारे लोग मिले और वहां से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में निकले, तो ऐसे टाइप में हम लोग क्या बोलेंगे, उसको को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, सारे के सारे वेक्टर हम लोग शायद कंप्लीट कर चुके हैं टाइप्स। अब देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, कोप्लेनर वेक्टर रह गया, इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं, उसके बाद में हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, 3 और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर वेक्टर इफ दे लाइज इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या हुआ, एक ही प्लेन में, मतलब कि जैसे कि मैं बोलूंगा ये पेन, ये मार्कर, ये दोनों एक ही प्लेन में है। और कुछ ले लेते हैं, जैसे कि मैं बोलूं मेरे पास में और है क्या कुछ, सपोज कर लो ये हमारे पास में एक फ़ोन है, तो ये फ़ोन, ये सारे एक ही प्लेन में है, ऐसे एक ही प्लेन में है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, सेम प्लेन में है। मतलब सेम प्लेन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने बोला एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के वाले प्लेन में सारे अगर हैं, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग, कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, तो ये एक प्लेन है, हमने यहाँ पे क्या किया है, एक प्लेन बनाया है। तो इस प्लेन के अंदर ही सारे है, एक ही प्लेन में है, तो ऐसे प्लेन को क्या बोलते हैं बच्चा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फिर से शायद ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो चलो उसको तो कर लेंगे बाद में हम लोग। चलिए, पहले तो समझ में आ गया ना यहाँ तक, तो लॉ ऑफ ट्रायंगल आ गया। अभी हम लोग लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन कभी नहीं, अभी नहीं पढ़ना है हम लोग, बस जस्ट अभी 1 मिनट। हाँ, को इनिशियल वेक्टर हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए थे, कोप्लेनर वेक्टर भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में है, मतलब कोई इसका डाउट नहीं होना चाहिए कि सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या होगा, जैसे ये पेन पेपर है, तो पेन पेपर में बहुत सारी चीजें लिखा जाता है, तो वो सारे एक ही प्लेन में आते हैं, तो वहां पे अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो कोप्लेनर वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट्स, मतलब इफेक्ट के बेसिस पे टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। आज रहने देते हैं, इतना बहुत है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसको रीड कीजिए, इसको कॉपी बनाइए, और इसमें डाउट हो तो आप बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर जब हम आपसे मिलेंगे, वहाँ पे आपके डाउट भी सॉल्व करेंगे, लेकिन साथ साथ हमारा फिजिक्स भी कंप्लीट होते चला जाएगा, आप अगर लेक्चर देखते हैं तो। थैंक यू वेरी मच।